को शुरू करते हैं। एक उम्र हम ये किस्सा तुमसे कहा करेंगे। द नेक्स्ट सेशन इज़ द सीक्रेट ज्योग्राफी एंड लेजेंड्स ऑफ शाहजहानाबाद। इस सेशन में हमारे मेहमान प्रोफेसर समीर रफ़ीक हैं। मिस समीर रफ़ीक, और डॉक्टर हिलाल अहमद। Before I invite the मेज़बान of the session, if we could please welcome them with a हमारे मेज़बान इस सेशन के हैं डॉक्टर माज बिन बिलाल। Dr. Maaz bin Bilal is a writer, translator, and academic. Having earned his PhD in modern literary studies from Queen's University, Belfast, he has written a number of books, some of which are Ghazalnama and Temple Lamp, which is a translation of Ghalib's work, some of Ghalib's work. Dr. Maaz bin Bilal. शुक्रिया अंजुमन तरक्की उर्दू, शुक्रिया IIC इस प्रोग्राम का इंतज़ाम करने के लिए, इस पैनल में हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। ये भी एक शायद मज़े की बात है कि ये इस पैनल का नाम है सीक्रेट ज्योग्राफी, और उर्दू में इसका नाम कुछ मुख्तलिफ है, जिस पे मैं बाद में आऊँगा। और जुमे के रोज़, जुमे के वक्त ये पैनल हो रही है, शायद इसकी वजह से भी कुछ अटेंडेंस में फ़र्क पड़ा है। हेलो खैर, इस पैनल का टाइटल जैसे मैंने कहा, अंग्रेज़ी और उर्दू में कुछ फ़र्क है, तो मैं ज़रा वहाँ से बात शुरू करके फिर पैनलिस्ट का और तवील इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इंग्लिश में इस पैनल का टाइटल है द सीक्रेट ज्योग्राफी एंड लेजेंड्स ऑफ शाहजहानाबाद, और उर्दू में इसका टाइटल है दरवेशान शहर और शाहजहानाबादी ज़ियारत गाहें। क्योंकि मैं शायद मुतरजिम हूँ, ट्रांसलेटर हूँ, सो माई अटेंशन वेंट टू द फैक्ट दैट these two different texts in two different languages, they're not exact translations of each other. They say two slightly different things, and I'll try to elaborate on that as we go along. But I'd like to begin with, let me first perhaps, I'd like to begin with something which is, which perhaps speaks about this idea of sacred geography. Or sort of, let me first introduce the panelists. I think that will be more logical. Sorry. So Professor Sami Rafiq Sahiba, she's quite senior. She's the professor of English at Aligarh Muslim University, of course. She is also a translator, author, poet, and novelist who celebrates human values. She's traveled to various countries around the world to promote women's writings in Urdu, her translations of Urdu poetry, and her academic interests. She has published more than 200 articles, stories, and poems in national newspapers and magazines, and also several books of translations. She has translated the poetry collections of famous progressive Urdu poets into English, such as Asrarul Haq Majaz, Sahir Kaifi Azmi, Muin Ehsan Jazbi, etc. Her translations have appeared in prestigious publications like the Indian Literature of Sahitya Academy. She's also been part of the Lucknow Lit Fest, and she has published stories and features for children in English and Urdu newspapers. She's the founding editor in chief of Cloverleaf, a journal of education in evolvement and all-encompassing spirituality, published from Canada. And she's also published a collection of poetry called Trees, Poems on Climate and Nature, published in 2022. Woman in the Trees. Woman in the Trees. My apologies. Poems on Climate and Nature. Yeah, and her translation of Farozan by Muin Ehsan Jazbi
was also published in April 2023. These are some of her more recent works. Dr. Hilal Ahmed is Associate Professor at CSDS. Again, he has many accomplishments to his name, but perhaps in the interest of brevity, if he'll allow me, I won't make this very long. He has worked on political Islam, Indian democracy, and politics of symbols in South Asia, and in fact has written about the monuments of Shah Jahanabad in his first book, particularly about Jama Masjid, and so on. He is associated with the Lokniti program of the CSDS. His first book that I already referred to is called Muslim Political Discourse in Post-Colonial India, Monuments, Memory, Contestation. He has also been writing and publishing in Hindi and edits the Hindi journal of CSDS, Pratiman. In Hindi, his other books are Allah Naam Ki Siyasat and Sudipto Kaviraj, a reader. His other books in English, more recent ones are the monograph Siyasi Muslims, A Story of Political Islam in India, and along with Peter D'Souza and Sanjeer Alam, Democratic Accommodations, Minorities in Contemporary India, and of course he has many other accolades to his name as well. I will try to keep it brief in the interests of time. But to get back to where I wish to start, sacred geography, perhaps as I see it, I translated Mirza Ghalib's Chirag-e-Der, Temple Lamp, which is his long poem on Banaras, where he calls Banaras Kaaba-e Hindustan. This, I think, is in many ways is symbolic of the way many of these people from Delhi, particularly, since you're speaking of the sacred geography of Delhi, thought about themselves and their time and their engagement with the sacred. There are many verses of Mir that are quoted in this context. I want to refer to one qata from Persian by Ghalib. Masan shaukat-e urfi ke bood shirazi, mashu asir zulali ke bood khansari, basomnate khayalam darai tabini, Ravan Faroz Bardush Hai Zunnari. Do not be awed by Urfi, even if he is from Shiraz. Don't be taken by Zulali, though he comes from Khansar. Come into the Somnath of my imagination and see soul-stirring forms adorned with the Janeu on my shoulders. Sacred geography, unlike physical geography, is not visually apparent in the same way, or is it empirically measurable in the same way as physical geography is. Sacred geography is created as part of one's imagination, or a people's imagination. And Diana Leck has written a book about the sacred geography of India. She focuses primarily on the Hindu sites and the Hindu sacred imagination of India. Perhaps she goes to Ajmer in some places, Ajmer Sharif. But apart from that, largely sticks to the Hindu geography of India. Whereas Shah Jahanabad presents us with perhaps a more interesting dynamic about the sacred geography. So my first question is to Professor Hilal Ahmed, and I want to sort of probe him about how he sees the sacred geography, the idea of sacred geography itself, and particularly the sacred geography of Shah Jahanabad. Perhaps you would like to begin with Jama Masjid, or feel free to go wherever you like. बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया IIC. मुझे फॉर्मल होना नहीं आता, तो इसलिए सीधी बात करता हूँ. शुक्रिया सबका. ये सवाल जो है सेक्रेड ज्योग्राफी का, अगर इसको हम एक कॉन्सेप्ट के तौर पे लें, तो ये ज़्यादा उस चीज़ से, और माज ने अपनी बात शुरू भी की, उर्दू में जिस तरह से इसका तर्जुमा हुआ है और जिस तरह से हम अंग्रेज़ी में देखते हैं, उसमें एक दिलचस्प फ़र्क है. और ये दिलचस्प फ़र्क सिर्फ ट्रांसलेशन का नहीं है, इसमें एक कॉन्सेप्चुअल मामला भी है, इसमें एक सैद्धांतिक मामला भी है. माफ़ कीजिएगा, मेरी उर्दू बहुत ख़राब है, तो मैं बीच बीच में हिंदी और संस्कृत निष्ठ हिंदी का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग उसी में है. मैं इवॉल्विंग शाहजहानाबादी हूँ, जहाँ पर कि उर्दू मीडियम स्कूल ख़त्म हो गए थे, इसलिए हमारे माँ बाप ने हमें हिंदी मीडियम स्कूल में डाला. तो आपको एक इवॉल्व्ड शाहजहानाबादी भी आपके सामने है. मैं उस हैसियत से भी अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा. लेकिन
दोबारा इस बात पर आते हुए कि जब हम किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसके ज़रिए हम किसी बड़ी चीज़ को समझ सकें। अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट्स इसलिए होते हैं कि जिसके ज़रिए हम किसी बड़ी बात को समेट कर रख दें। जैसे हम जब जाते हैं मेट्रो ट्रेन में और ये कहा जाता है कि माइंड द गैप, तो वो एक कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट है। वो कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट इसलिए है कि आपको पूरी बात नहीं बताती कि अगर आपने ये गैप का इस्तेमाल नहीं किया तो आपका पैर फंस जाएगा, आपके चोट लग जाएगी। उसको हम समेट देते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत अहम हैं और माज ने उसकी तरफ इशारा किया कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या वाकई उसी बात को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है जिसको कि हम ज़ियारतें कह रहे हैं, जिसको कि हम उस शहर के बारे में कह रहे हैं जो शहर शाहजहानाबाद है और उसकी अपनी एक जोग्राफिया है। अब देखिए जो ज्योग्राफी है उसे हिंदी में भूगोल कहते हैं और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ हिंदुस्तानी में उसे भूगोलिया कहेंगे। तो जोग्राफिया और भूगोल, इसका मतलब हमारे पास में वो शब्द भी नहीं है जिसके ज़रिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। यही मेरी पहली बात है। इसलिए जब भी हम सेक्रेट ज्योग्राफी की बात करें, बहुत अच्छी बात नदीम भाई ने कही और मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि नारायणी मैम भी बैठी हैं, नदीम भाई भी, ये लोग तो पक्के हिस्टोरियन हैं। मैं तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ जिसकी थोड़ी बहुत दिलचस्पी हिस्ट्री में है। दबिस्तान मज़ाहिब का इरफान साहब ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, असराउ सनादीद का भी जिक्र किया। दोनों में एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि दोनों में लिस्टिंग तो है, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान की जो लिस्टिंग है वो लिस्टिंग नहीं है जो दबिस्तान में है। यानी लिस्ट तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर मैं अंग्रेज़ी में कहूँ, इट्स एन ओपन लिस्टिंग, वाइल इन केस ऑफ सर सैयद इट इज़ ए स्ट्रिक्ट डिमार्केशन ऑफ साइट्स एंड रिलीजन इन ए पर्टिकुलर वे। ये अगर मैं इसको एक और लफ्ज़ दूँ, वो जदीदियत है। सर सैयद के आते आते जिस ज्योग्राफी की हम बात करते हैं वो ज्योग्राफी हो चुकी है और सर सैयद से पहले जो ज्योग्राफी है वो खुली ज्योग्राफी है, वो ओपन है। तो उसका ओपन होना, उसका अपने आप में खुलापन होना उस मज़हब की तरफ भी इशारा करता है जिस मज़हब को हम आज नहीं समझ सकते। वो मज़हब बिल्कुल अलग किस्म का रहा होगा। नदीम भाई ने अपनी बात में ये कहा कि निगम बोध घाट, और सर सैयद जब अपनी किताब में निगम बोध घाट का जिक्र करते हैं तो वो भी उतने ही आत्मीयता से करते हैं जितने कि वो किसी मुस्लिम या किसी इस्लामिक साइट का कर रहे हैं। तो निगम बोध घाट दिल्ली वालों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट तो है, लेकिन जब लिस्टिंग की बात आती है उस किताब में, असराउ सनादीद में, वो स्ट्रिक्ट लिस्टिंग है। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि कॉन्सेप्चुअली दो अलग अलग यूनिवर्स हमको मिल रहे हैं। एक कॉन्सेप्चुअल यूनिवर्स ऐसा है जिसमें मज़हब और लिस्टिंग खुली है, जिसमें कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं, कुछ चीज़ें बाहर भी जा सकती हैं, इसके बावजूद भी काम चल जाएगा। लेकिन एक लिस्टिंग ये है कि जहाँ पर कुव्वत हो जाएगा, जहाँ पर वो माइट ऑफ इस्लाम हो जाएगा और जहाँ पर कि वो हिंदू और मुसलमान भी हो जाएगा। तो जो मज़हब हमको मिला, ये मैं एक थोड़ा प्रोवोकेटिव बात कहना चाहता हूँ, इसीलिए और इससे ही मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जो मज़हब हमको मिला 19वीं सदी में, वो क़द्र हद तक मॉडर्न मज़हब था। उसकी स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट गाइडेड था उसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कंसर्न से। वो किसी भी मज़हब के बारे में बात की जा सकती है, आशीष नंदी ने इस बारे में लिखा भी है। तो जो मज़हब हम जिसको आज हम मान रहे हैं वो एक कंस्ट्रक्शन है 19वीं सदी का। इस चीज़ को हमको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए जो नदीम भाई की बात में भी और इरफान साहब की बात में भी जो बात बार बार आ रही है वो ये है कि आप ये मत मानिए कि मज़हब जो है वो रुक जाता है। और अगर क्योंकि मज़हब नहीं रुकता, इसीलिए जिस चीज़ को हम सीक्रेट ज्योग्राफी कह रहे हैं वो भी नहीं रुकेगी। इसलिए जिस चीज़ को हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप कह रहे हैं वो भी बदलेंगे, मंदिरों का स्वरूप भी बदलेगा, मस्जिदों का स्वरूप भी बदलेगा, क्योंकि जिन रीति रिवाजों को हम मज़हब मान रहे हैं वो भी बदलेंगे। इसलिए जिस फ़र्क को माज ने हाईलाइट किया वो कॉन्सेप्चुअली बहुत अहम है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, क्योंकि हमारा इसके बाद भी मुझे मौका मिलेगा ना बोलने का, हाँ ठीक है, कभी मैं सारी बात अभी ना तो बचा के भी रखनी है। जो दूसरी अहम बात है वो ये है, और जिस पर मैं बाद में बात करना चाहता हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, तो अगर मैंने वो बात नहीं बोली तो मैं नाइंसाफ़ी करूँगा अपने आप से भी
और आप सबसे भी, क्योंकि यहाँ मुझसे बड़े हिस्टोरियन बैठे हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट लोग बैठे हैं, ये लोग ज़्यादा जानते हैं। मैं आपको दोबारा सर सैयद में लाकर छोड़ दूँ और फिर भाग जाऊँ, वो ठीक नहीं होगा। मैं और जैसे मैंने कहा कि मैं तो इवॉल्व शाहजहानाबादी हूँ, इवॉल्विंग नहीं, इवॉल्व्ड। तो वो इवॉल्व शाहजहानाबाद में एक इमारत जिसकी तरफ इशारा माज ने किया वो है जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद की जो सियासत है उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा अगली बार में। इस बार जो बात है वो जिस पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ वो ये कि शायद ये जो दो चीज़ें मैंने कहीं, एक सेक्रेट ज्योग्राफी का वो होना जिसमें लिस्टिंग तो है लेकिन खुली हुई है, और एक ऐसी सेक्रेट ज्योग्राफी जिसमें लिस्टिंग है और बहुत रिजिड है, वो हमारे जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था कॉलोनियल इंडिया में भी और उसके बाद में भी, उसका एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट है। हमारे बीच नाज़िमा परवीन है, इनकी एक बहुत दिलचस्प किताब है कंटेस्टेड होमलैंड्स, जिसके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ इंडिया पर एक बहुत लंबी चर्चा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ मैं दो लोगों को हाईलाइट करूँगा और उसके बाद में फिर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। पहले जो हैं वो है टैगोर। टैगोर के इमेजिनेशन में, टैगोर मजहबी हैं, मजहबी स्पिरिचुअल सेंस में है, टैगोर मजहबी रिचुअलिस्टिक सेंस में नहीं है। तो रिचुअल और फिलॉसफी दोनों में वो फ़र्क करते हैं। और उनका बेहतरीन जो नावल है वो है गोरा, जिसमें कि ये बार बार ये टसल आ रहा है, रिचुअल और उसका जो लड़ाई है वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के साथ में है। तो वहाँ पर टैगोर के संदर्भ में जो सेक्रेट ज्योग्राफी है वो उसी तरफ ले जाने की कोशिश है, इस बात को होते हुए भी कि हमारे यहाँ पर लिस्टिंग हो चुकी है, हमारे यहाँ सेक्रेट ज्योग्राफी पूरी तरह से एकदम से उसे टाइट कर दिया गया है, इसके बावजूद उस खुलेपन की तरफ जाने की कोशिश है, और गोरा उसका सबसे अच्छा प्रतीक है। दूसरा नाम जो मैं लेना चाहता हूँ वो है गांधी का। गांधी के अंदर भी वो खुलापन है, और इसीलिए शायद गांधी जो हैं उनके लिए ये जो जिस चीज़ को हम अंग्रेज़ी में टेरिटरी कहते हैं वो बहुत अहम चीज़ नहीं है। इसीलिए अगर आप लोग गांधी के यहाँ जाएं, गांधी की समाधि, तो जो बानो बूटा का डिज़ाइन है वो इसी बात पर नेहरू ने पसंद किया था कि वो चारों तरफ से खुला है। राजघाट में बापू की समाधि जहाँ बीच में है, वो चारों तरफ से खुला है, जो इस बात को सिंबलाइज करता है कि अच्छी बात कहीं से भी आ सकती है, वो फ्लो है। तो इसीलिए उसको किसी ख़ास परिधि में बांधना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष जो है, जो दूसरा इसका विरोधाभासी पक्ष है, वो है सावरकर का। सावरकर के लिए पुण्य भूमि का विचार बहुत केंद्र का विचार है। उनके लिए कहीं ना जो सेक्रेट ज्योग्राफी वाली बात है वो बिल्कुल फिट होती है सावरकर के साथ, इसलिए क्योंकि पुण्य भूमि और पितृभूमि का एक जगह पर होना सावरकर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये छोटा सवाल नहीं है, जो सेक्रेट ज्योग्राफी का सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है। और उसके अंदर जो ये टसल है, यानी, और फिर मैं जो आखिरी बात करूँगा वो जामा मस्जिद पर करूँगा, जो ये टसल है गांधी टैगोर एक तरफ और सावरकर, और मैं थोड़ा हिचकते हुए कहना चाहता हूँ नेहरू दूसरी तरफ, जहाँ पर कि आपको कहीं ना कहीं पर नेशन स्टेट आपने बना लिया तो आपको कहीं ना कहीं पर उसके अंदर चीज़ों को एडजस्ट करना है। नेहरू के लिए वो इंक्लूसिवनेस हो सकता है, सावरकर के लिए वो हिंदुत्व हो सकता है, लेकिन दोनों का जो फ्रेमवर्क है, मैं कह रहा हूँ कि मैं झिझक, ये बारीक बात कहने की जगह है और मुझे लगता है कि हमें बारीक बात कहनी भी चाहिए यहाँ। तो उसका जो फ्रेमवर्क है दोनों का, अभी बहुत अच्छी किताब आई है मुस्लिम सेकुलर अमर सुहाल की, जिसमें कि उन्होंने कोशिश की है इस बात को बताने की, इस बात को हाईलाइट करने की कि जो दोनों का जो फ्रेम है वो फ्रेम ये है, और इसीलिए आज़ाद जो है, मौलाना आज़ाद, वो इस फ्रेम से बाहर जाकर लिखते हैं। हुमायूं कबीर और मौलाना आज़ाद, किताब ज़रूर आप देखिएगा। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया हिलाल साहब। मेरे ख़्याल से जो बातें आप कह रहे थे वो मीर के नाम पे ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया है। 18वीं सदी में एक हद तक मीर में भी हमें बातें काफ़ी स्ट्रॉन्गली मिलती हैं। मीर का एक मशहूर शेर है, उसके फ़रोग़ हुस्न से झमके है सब में नूर, शाम हरम हो या हुदिया सोमनाथ का। इसी तरह आपने घाट की बात की और पिछले सेशन में भी निकम्बोध घाट वगैरह की बात हो रही थी। तो
कल भी एक सवाल उठा था कि क्या गालिब हिंदुस्तान का ही शायर हो सकता था, इसको हम किस तरह मान सकते हैं। तो इस हवाले से भी एक शेर अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जब राख जुस्तजू क्या है। तो ये जो जलने की बात है, ये आजकल पॉलिटिक्स से भी मुझे कुछ रग़बत है, लेकिन अदब में मेरी मेन दिलचस्पी है। तो शमशान और कब्रिस्तान की बातें पॉलिटिक्स में बहुत हुआ करती हैं, और ये शमशान और कब्रिस्तान सब हमें शाहजहानाबाद के इर्द गिर्द मिला ही करते हैं। शाहजहानाबाद शायद बसाया ही एक शमशान के करीब गया, और उसके इर्द गिर्द कई कब्रिस्तान हैं जहाँ के भी अपने क़िस्से वग़ैरह हैं। कई ख़ानक़ाहें हैं जो पहले से भी थीं शाहजहानाबाद के, और अब तक भी हैं। और इन बहुत अलग तरह के लोगों के लिए यहाँ जगह भी है। हिजड़ों की भी ख़ानक़ाहें हैं, कब्रिस्तान है मेहदियान, वहाँ पे इत्तेफ़ाक़न मेरे भी वालिद साहब और ख़ानदान के कई लोग वहीं दफन हैं। तो वहाँ अभी हाल तक ही एक मोना अहमद की खानका हुआ करती थी, अब उनका इंतकाल हो गया, वहीं उनकी कब्र है। दयानंदा सिंह ने उन पर एक प्रोजेक्ट किया था, और शायद अरुंधति रॉय ने भी अपने रीसेंट नावल में कुछ उनको एज अ कैरेक्टर यूज़ किया है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोफेसर समीर रफ़ीक़ को इनवाइट करना चाहता हूँ, और जो कि वो अपनी बात रखें। आई थिंक शुड प्रेफर टू रीड इट आउट एज अ पेपर, एंड सम ऑफ द आइडियाज़ दैट I've reflected upon, I think will be expanded upon in her paper as she goes on, of course. Please. I would like to thank the two organizations for inviting me. I especially would like to thank Farooqi Saab for giving me a chance, because I'm not a historian. This is the first time that I've come here. And I would also like to thank Professor Nadeem Rizavi for all the help and guidance. My area is English, but my area is translation also. And I thought of Shahjahanabad on a very different level. I thought that it is something that has it's culturally very, very vast. We talk about the food, the lives of the people. We talk about history. We talk of Shahjahanabad or Old Delhi in different terms. So let's see that this is a different lens. I decided to take up literature and try to discuss all these things as written by various historians or people who are writing the supernatural stuff or about in fiction. So I thought it would give a fresh angle to this whole thing, because my area is literature. So there is no doubt that Old Delhi or Shahjahanabad is a source of fascination, or has been a source of fascination for many writers in the past and present. It is a place that is steeped in the culture of the sacred too and the profane too, as I will discuss the books. It is rich in temples and dargahs, churches, tombs, Jain temples also, and there are various misrepresentations also, like it is a place that is an Islamic city, which has been sort of argued against by several writers. So there are some books that I have discussed here, and there are some extracts. I'll try to read out very short pieces of the extracts. So in the Rutledge Handbook of Asian Studies, Goreria mentions how before the well-defined shape of Shahjahanabad, there were actually 6, 9, or 13 or 14 settlements. And the names are Qila, Rai, Pithora, Lalkot, Siri, etc., etc. And the last one was the city of Sher Shah, and he has quoted various sources. One book is The Seven Cities, and talks about Old Delhi as the old core. And he also mentions that it was in 1193 that Old Delhi fell in the hands of Turkish invaders, and the first new king, Muhammad, he undertook the construction of a series of monuments and also the marvelous Qutub Minar and 27 Hindu temples. So this was a quote from the book. But aside from history and aside from talking about details about Islam and religions,
there is a profane side too, which is extremely interesting. And as I said, the writings could be classified as historical, fictional, sacred, supernatural, and of course we know a whole lot about food writing also, as far as Old Delhi is concerned. I remember there's just one book I came across by Sadia Delvi talking about cooking in Old Delhi along with her memories. So it's a very beautiful presentation also. That's the most recent book that I looked at and related to food. If one were try to attempt to find an adjective that could exactly describe Shahjahanabad, it would be next to impossible because of its rich and complicated tapestry of historical and cultural legacies. So after the state of decline after 1857, there was a destruction of a culture in colonial times, and then the undoing of globalization, and still Shahjahanabad has held on to its mystique. There's another book, Shahjahanabad, the Sovereign City in Mughal India, by Stephen Blake, which has been quoted again and again. So as I said earlier, it challenges the false notions of this being a Islamic city. Because this book gives us a very detailed description of the Mughal court and how there was a mixture of Hindu and Muslims, and particularly there's a mention of the scribes, the men of the pen. So these people were in charge of some clerical work in the courts, but they were poets also. And so it's like these men of the pen were both Hindu and Muslim, and it was most certainly talent that got them great recognition. Quote, one of these men was Raja Raghunath, who in the 23rd year of Shah Jahan's reign was given the title of Rai, the gift of a gold pen case, and promoted to record keeper of the household lands. And another was Banarsi Das, a Jain merchant from Jaunpur, who had learned Hindi and Persian in addition to arithmetic, accounting, and assaying of coins, unquote. Then he mentions places like Chandni Chowk were hotspots where there were literary gatherings or mushairas, and Blake quotes Risale Salaye Jung saying that there were coffee houses in Chandni Chowk where great men gathered daily to sip the dark, bitter brew and discuss cultural and literary matters. Then I went on to the next book, Asarus Sanadid by Sir Syed, and once again I found the mention of temples in this book. And he devoted his book to 3 separate sections. And he mentions Kalika, an important Hindu religious site. Quote, this temple is situated in 6 course south of Shahjahanabad, within the boundaries of the village Behapur. If anyone were to offer his hands, feet, or tongue to the Devi, she would return the same to him on the 3rd day, unquote. So this is in the way of belief that I quoted this. Then yet another book, in Maraqqai Delhi by Dargah Quli Khan. The descriptions are extremely interesting, but the focus is not on the sacred alone, but the profane too, the unsacred too. So there's a fascinating glimpse of Delhi's layout, geographical features, as well as the cultural life. There are elaborate descriptions of ceremonies, rituals, qawwalis in honor of saints, Sufis, etc. So the listing also in the book, chapterization, comes by the name of, by the Sufis also. So Mirza Abdul Qadir Bedil was one of them. So it was just not a spiritual pleasure to go and celebrate and, to sort of do ziyarat over there, but there was feasting, wine, and women too. And then he mentions the festival of Basant at Qadam Sharif, where they're supposed to be the footprints of the Prophet. Again, quote, however, pleasure was not attained at the houses of the nobles in the guise of piety. All those gathered were conscious of the part they had to perform. There were young lads and beautiful girls whose task it was to charm the members of nobility present and to seek to join their services, unquote. In one of the many descriptions in the books
in this book of saints and mendicants, there's a comical description of a person or a saint called Pansad Mani. And people go and offer their, prayers, and they give him great respect. But the funny thing about him is that he wears a turban that weighs 20 seir, I think about 30 kgs. And when he gets into the house, it's very difficult to get in. So they have to remove the turban first, then he becomes a small man. So this quote ends with, may God grant him lightness. So there are some funny things also, some humor also in the books. And Dargah Quli Khan shows a rich and vibrant culture full of dance and music, and lifts Shah Jahanabad above the misleading misnomer of communal. And again, I quote from this book, music seems to have been the most popular and pervasive form of entertainment practiced in all walks of life. It was patronized in the imperial court, in the establishments of the nobility, in the khankas of the living Sufis, in the houses of the musicians and dancers, and on the streets and common places. Its votaries included Hindus, Muslims, Sufis, saints, sultans, rich and poor, unquote. Then there's this place called Qadam Sharif. Itself was an important pilgrimage site. And there were many tombs of notable mystics and poets which people visited, but there's an important comment added that people seem to revere and sanctify only those who are dead. The living saints were not given much importance. So he also makes mention of an urs in honor of poet Mirza Bedil, and the verses are sung, and on the title page of his Kulliyat or collection, the quatrain follows, in spite of the overflowing virtues and poetry of nature reflected on your face, you never fail to acquire more. And then there's another interesting point that is somewhere in Mehroli. There is the tomb of Jamali Kamali. So now this Sheikh Jamali was, he was a poet, and he was a mystic and a Sufi. And the interesting thing is that a person has written a collection of poems, inspired by, her name is Karen Chase, and the book's name is Jamali Kamali, and these are erotic poems. Such eminent people are here, but the sign is that the woman's tomb has a slate-like mark drawing, and a man's tomb has a pencil box kind of drawing on the tomb. So they know that it's a male next to him, but there are all kinds of stories associated. And so, quote, Karen Chase notes that local oral tradition believes the so-called Kamalito may have been a male companion or lover, in keeping with the Sufi images and the character of Jamali's verses. This could easily be the remnants of earlier bazaar gossip, and a poem may authentically reflect what was in the minds of many of Jamali's contemporaries. Yet if we still have unquestioned proof of the identity of the second burial, as I said, as she talks about the tombs, how they are different. And she has also quoted a few lines from, they have been translated by Bruce Vannell, and these are Jamali's poems. Your rain clouds grace to wash away our dust, yet still the heart feels scalding wounds of shame. When you are away, we are left alone and friendless. Only the yearning for you keeps company in our grief. Jamali, bring your woes to the threshold of the friend, for there lies our salvation, unquote. Also, again, another interesting part, let's say, when we talk about sacred geography, it's not about physical features of a land. It's the features in the heart and the mind and the soul. That's what's sacred. So it could be beliefs, it could be gossip, it could be reliable or unreliable, but well, it is there. So they believe, the belief of these people who live around the place is that it is now jinns dwell in this place. So again, making it a bit interesting, the journalist Ziad Masroor, he mentioned something about a friend who talked about visiting the tombs, and she felt, some presence was there. So he took up the challenge and he went there. So he has written this book, City on Fire,
boyhood in Aligarh. So it was quite interesting because he, in spite of all his rationalization, going there at midnight, telling himself that nothing like that exists, he still felt some presences. And other than that, the belief was there that people say cows, animals and all, haunted cows and things and all. So there was an amusing side also he mentioned, that when he went towards the tomb, it was around 12 o'clock. So on the wall, he saw a pair of trousers and a dupatta. So now he saw that he was interfering in somebody's, love nest. And the second thing was that, he got the chills when he bumped into a buffalo. And actually it was a real buffalo. But then he does say, in spite of all these things and all his rationalization, something was there, and he wanted to take his bike and run. But then he said, being a journalist, he could not have taken the beating. He sat under the lamp and he started playing PUBG. And he told all his friends that I'm in a haunted place. And they were all so intrigued, where are you? And says, I just got busy in the game. And then suddenly he said, I felt the temperature went very, very low. I was freezing for a few minutes. And so it was feelings like these. Then he was thinking of running. Then he said, no, let me go to the tomb. And there he felt something was following him. And when he says that it followed him right to his apartment, and he was troubled 3 nights, he could not sleep. So beliefs like these are also there. Then there's a very interesting book, Jinology, by Vivek Taneja. Now again, when we talk about jinns, it's hearsay. We hear from our ancestor, from our great-grandmothers and grandmothers. But the concept of his book is extremely interesting because it weaves politics into it. The belief in jinns, going to mazars and asking for wish fulfillment. As he mentions Firoz Shah Kotla, and there's a saint come jinn over there. He's known as Nanne Mian. So what prompts people to go there? It's, after 1857, this kind of thing, the poorer Muslims being troubled by harsh reality. They found this. He tries to give a practical reason for it. But yet, we have chapters on chapters where he he goes to Firoz Shah Kotla and he observes the people, and he really notes some very interesting points, that in Firoz Shah Kotla, you don't know anybody by name. You may be knowing somebody for 20 years, but you may not know him by name. And then underneath, there are those, under the tomb, there are galleries where they light lamps every Thursday. So that's where people go and make offerings and ask for prayers. And right in the beginning of his book also, he talks about hearing a voice there in one of the, near this tomb. In connection with this, he talks about certain people. He interviewed people. And then this person said, well, all these, organizations, the societies for history and all, archaeological societies are there, they won't believe. But sir, let me tell you my personal story. So it is filled with so many interesting stories that you just cannot put down the book. There's this gentleman, he talks about, he's a Hindu gentleman, and he says that my in-laws, they lived in Old Delhi. And they were believers, or they were worshipper, whatever. They had faith in Nanne Mian. Or I think there's some Baba, some tomb of Baba there. So he says, I never believed in all that, but my wife's family believed. So there was a hard time in my life when I didn't have money. I didn't even have money to pay a ticket for a bus with great difficulty. I decided that I'll go to Old Delhi and I might borrow something from my in-laws. So when I went to their house, nobody welcomed me, nobody even offered me tea, and then I saw that Baba's picture. And somehow there was something on my mind or something. I came away, and in the night I saw this dream. This is a recurring pattern there, that these people who come there, they have dreams. Now there may be a psychological study of it, and then they go to these tombs. So he says, Baba appeared to me, and he said that you come and meet me, I'll solve your problem. I said, all rubbish. He ignored it. And then the second night, he saw the dream again. His wife was a believer. So second night, he said, what rubbish. When the third night, he saw this dream again, and the Baba is in a fury. Come here, when I'm calling you, why didn't you come? Then he told his wife. She said, when he's calling you, why don't you go? So after that, when he went there, he says he became a murid, and he says his problems were solved. So there are many other such stories that are quite, it's difficult to believe, but they are there. So let me quote some of the observations.
In the narratives of healing told at Firoz Shah Kotla, the boundary between the self and the world is radically porous. There is nothing that impresses its. There is nothing that impresses its will on the world. Rather, it is the self. Sorry, there is no I that impresses its will on the world. Rather, it is the self. Rather, it is the self acted on through dreams, possession, and talking animals. Yet these are also stories of rebellion, of the transgression of dominant social morality, and the radical ethical change, unquote. So we can see that he has examined it from a social and a historical perspective, and he has studied it very deeply. So the last book that I would like to consider is The Ministry of Utmost Happiness by Arundhati Roy. The book itself opens with the mention of Sarmad. So again, she's talking about hearsay, that when Sarmad was beheaded, it was as if, that's the belief of the people near Jama Masjid where his tomb is, that he picked up his head like a bicyclist would pick up a helmet, and he carried his head right up. So till this day, the grave or the tomb, it is there was blood all over the place. So that tomb is always red. They say if you paint it any color, green or blue or whatever, it always turns red. So now these are the beliefs, and I would love to go and visit these places and find out for myself. But a good part of literature, the writers have so much to write about. So Arundhati Roy also picks up about one community that is shunned and that is outcast, is the Hijra community. Now I feel that this Hijra community, Anjum, who is the character, I think she represents, somebody who is exiled, not just a human being. It's a culture that is exiled. It's a person who is exiled, whose soul is exiled in some way. Perhaps she is representing the suffering of old Delhi in its way through the symbolism of this Hijra, which is unable to identify itself. So, through the struggles of Anjum, who is torn between the socially imposed gender as Aftab and the exiled soul within an unsuited body, one comes across the Muslim culture of old Delhi. So it's day to day, and their life and the shops and everything is so vividly described in this. And she's living, she meets Ziauddin, a blind imam, and she lives in a graveyard. So perhaps the transgender living in old Delhi, she represents the agony of the soul of India, trapped in unending conflicts. Even ramifications and redressals don't work. She tries to get her body repaired, but it really doesn't work. So there's a rich and complex undercurrent of meanings in words like Khwabgah, which is the home of the transgenders like Anjum, but though in Persian it means bedroom, here it is the house of dreams. So I could go on and on, but as we don't have so much of time, thank you so much. I enjoyed presenting this paper. Thank you very much, Professor Sami. I'd like to sort of intervene here a little bit and perhaps guide the conversation back to Dr. Hilal Ahmed. Perhaps I'll intervene at the point where you refer to Anand Vivek Taneja's genealogy and the idea of jinns and what happens in post-1857 and continuing down to the present, and why Old Delhi Muslims in particular are getting more invested in the phenomena, the beings that are jinns. But before I come to that, I'd again like to go back to what Professor Hilal said about Savarkar's ideas of Punyabhumi and Janmabhumi. And again, to go back to Delhi and the poets of Delhi from 18th and 19th centuries, Ghalib, like I mentioned in the beginning, is calling Banaras the Kaaba-i Hindustan. So what happens to the Punyabhumi, Janmabhumi argument there? I wonder. If one is to also, there is of course Mir's very famous sher that I think was quoted yesterday also in one of the sessions. Mir ke dino mazhab ko poochte kya ho unne to qashqa khecha, der mein baitha kab ka tark Islam kiya.
So all of these sensibilities also exist in Old Delhi, and you see this on the main vista. You begin from Red Fort and you enter Chandni Chowk, and the first major monument that's there right there is the Jain temple. Next to that is the Bhairav temple. You go down the street, there is the Central Baptist Church, which was, I believe, founded in 1818. If I remember correctly, the historians could correct me. And you keep going down, and then there's the Sunehri Masjid again, where Nadir Shah unveiled his sword and ordered the massacre purportedly. And then finally, you land at Fatehpuri Masjid. It is then perhaps again no wonder that Ghalib wrote the Sher, probably living in this part of town or the country, where he said, कलीसा मेरे पीछे है तो सॉरी काबा मेरे पीछे है तो कलीसा मेरे आगे तो बट ही ऑल्सो रोट अदर वर्सेस. उन्होंने ये भी लिखा है कि मस्जिद के ज़ेर साया एक घर बना लिया है, ये बंदा कमीना हमसाया खुदा है. गैर मुतबादिल दीवान से है ये, लेकिन मुतदाविल दीवान से, लेकिन तो एक मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ दोनों चीज़ें चल रही हैं साइमल्टेनियसली. एक सीक्रेट जोग्राफी है शायद जो सिर्फ इस्लाम से टाइड अप नहीं है. जब शाहजहानाबाद डिज़ाइन होता है उसमें भी शायद वास्तु का इस्तेमाल है, उसकी शेप भी एक धनुष एक बो की तरह है. और लेकिन जामा मस्जिद भी है. जामा मस्जिद एक मकबूल, एक मुक़द्दस बड़ी इमारत है, मॉन्यूमेंट है, और इस पर आपका काम भी रहा है. तो और गालिब लेकिन ये भी कहना है कि बंदा कमीना हमसाया खुदा है, बग़ैर मस्जिद में जाए. उनकी ये बात भी मशहूर है कि वो आधे मुसलमान थे. तो ये भी एक क़िस्सा है, ये भी एक लेजेंड है. सरमद का भी ये हाल है कि जो मैं पुरानी दिल्ली से ही हूँ, बल्दी मरान में मेरी परवरिश हुई. तो एक वर्जन इसका ओरली जो मैंने सुना है सरमद का, वो ये है कि सरमद सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और अपना सर हाथ में लिए, और अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ जाते, मस्जिद तक पहुँच जाते, तो शायद दिल्ली और कायनात पलट जाती. तो इतने में उनको हरे भरे शाह ने आवाज़ दी और रोक दिया, जो दूसरे एक सूफ़ी थे. और अब उन दोनों का मज़ार बराबर है. उनका मज़ार लाल है जैसा आपने कहा, और दूसरों का मज़ार हरा है. तो ये कई तरह की चीज़ें हो रही हैं. पावर से भी इंगेजमेंट हो रहा है, अलग अलग तरह हो रहा है. उस वक्त भी सरमद का सर कलम एक रूलर नहीं क्या उस वक्त के, आज भी पुरानी दिल्ली के मुसलमान और लोग भी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंटैलिटी से इंगेज कर रहे हैं. उसके रिस्पॉन्स में मज़हब से एक अलग तरह का भी इंगेजमेंट इमर्ज हो रहा है. और एक मल्टीकल्चरल हाइब्रिड सेक्युलर भी जिसे इंडिया में कहते हैं, उस तरह का कल्चर भी है शायद, और अब भी मौजूद है. तो इस सब में मैं हिलाल साहब को इनवाइट करना चाहूँगा कि ख़ास जामा मस्जिद पर और इन बाकी बातों पर भी ज़रा रोशनी डालें. जी. रोशनी नहीं डालना चाहता, बल्कि अंधेरे देखना चाहता हूँ, क्योंकि अंधेरे से ही जवाब आएगा. अंधेरे से इसलिए जवाब आएगा कि कुछ चीज़ों को जिनको हम दरकिनार कर देते हैं, मुझे लगता है कि वो काफ़ी अहम है. और उसमें एक चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर हम आम तौर पे बात नहीं करते हैं, जो आपने गालिब का शेर भी कहा उसको लेकर, वो है नक्शा, मैप. मैं आपसे पूछूं हिंदुस्तान क्या है, तो आपके जहन में सबसे पहली तस्वीर जो उभरती है वो ऐसे हाथ किया हुआ एक मैप है, एक नक्शा है. ये नक्शे का तसव्वुर बहुत नया है, ये नक्शे का तसव्वुर पहले नहीं था. तो जो तसव्वुर उस ज़माने में जिसको पेट्रियाटिज़म कहा जाता है, जगह के साथ में जो हमारे रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते किसी और तरह से डिफ़ाइन हो रहे होंगे. उसके बारे में थोड़ा हमें सोचना चाहिए, तभी जो आप गालिब का जो शेर था बनारस वाला, उसका सही मायना समझ पाएंगे. क्योंकि गालिब के ज़माने में ये नक्शे इतने पॉपुलर नहीं रहे होंगे कि हर घर में एक भारत का नक्शा, एक अखंड भारत का नक्शा एट्सेट्रा रहा होगा. तो पहली चीज़ तो नक्शे पर हमें थोड़ा सोचना चाहिए. हिंदी की एक कहानी है, और कल क्योंकि जावेद अख्तर कह गए हैं कि अब दोनों चलेगा, मैं उसी का ही वार्ड ये हूँ आउटकम. और हिंदी की कहानी उदय भास्कर की वारेन हेस्टिंग्स का सांड, बहुत मशहूर कहानी है और बहुत दिलचस्प कहानी है, ज़रूर पढ़िएगा. और उसमें एक जगह पर एक रेफरेंस आता है कि हमारे ये लोग नक्शा बना रहे हैं, अंग्रेज़ नक्शा बना रहे हैं, और हमारे यहाँ नक्शा बनाने का मतलब किसी को मार देना होता है.
है ना, जो आप बता रही थी उसमें कई सारे लेजेंड हैं ऐसे कि अगर मैंने किसी का वो पुतला बना दिया तो और मैंने उसमें कुछ गाड़ दिया तो मैंने उसको मार दिया। तो नक्शा बनाना कहीं हद तक भारतीयता, हिंदुस्तानियत, उसको मारना भी था। और शायद हम इतने नक्शे प्रिय हैं, हमको इतनी मोहब्बत है नक्शों से कि नक्शों के बगैर हम बाहर उसको देख नहीं सकते। और इसी पर, और मैंने कहा कि मैं पक्का वाला तो हिस्टोरियन हो नहीं, लेकिन जितने भी नक्शे हम देखते हैं, और यहीं पर फिर जो सावरकर वाली बात बहुत मीनिंगफुल हो जाती है, वो नक्शे जो हैं वो मुग़लों का नक्शा कहीं से आ रहा है, सल्तनत पीरियड के जो नक्शे हैं, जो भी नक्शे हमको मिलते हैं, और वो ब्रिटिश टाइम के ही नक्शे हम तक पहुँचे होंगे, उसका अलग है। कहीं अफ़गानिस्तान हिस्सा बन जाता है, अफ़गानिस्तान हिस्सा बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि कनिष्क हिंदुस्तान का शासक होगा, बाबर नहीं हो सकता, हालांकि वो भी अफ़गानिस्तान में है। तो ये जो बाउंड्रीज़ का पूरा आइडिया है, ये कहीं पर हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। और जिस चीज़ को सावरकर कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो मैप सेंट्रिक है, या जिस चीज़ को आज अखंड भारत कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, वो मैप सेंट्रिक है। लेकिन जिस इंडियननेस की बात गांधी करते हैं, नेहरू नहीं करते। नेहरू के सामने एक नेशन स्टेट है तो उनको वैसा करना पड़ेगा। लेकिन जिस चीज़ की बात गांधी करते हैं, जिस इंडियननेस की बात गांधी करते हैं, वो मैपलेस है। ठीक है, तो वो मैपलेसनेस के ज़रिए हमें सेक्रेट ज्योग्राफी को देखना चाहिए। एक बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो है, जब हम सेक्रेटनेस की बात करते हैं, ख़ास तौर से शाहजहानाबाद की, तो एक और ख़ास तौर से पोस्ट कॉलोनियल इंडिया की, मैंने कहा कि मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मेरी रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो इसलिए मुझे शौक़ है पढ़ने का। लेकिन मैं पोस्ट कॉलोनियल इंडिया को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ 2-3 वजहों से। एक, जिसको चीज़ को हम बात ही नहीं करते, वो है इलेक्शन। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ने इतनी सारी चीज़ों के मतलब बदल दिए कि जिस धर्म को, जिस मज़हब को हम आम तौर पे मज़हब कहते हैं, उसका एक बड़ा ही ख़ास मायना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ने घड़ा है। और हम उसको ये कह कर के मज़हब और पॉलिटिक्स को अलग करो, हम अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उस मायने के साथ हम जिंदा रहे हैं 75 साल, और उस मायने का जो आउटकम था वो हमारे सामने है। तो जब भी हम सेक्रेट ज्योग्राफी की बात करें, तो जो पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ रिलीजन है उसको हम नज़रअंदाज ना करें। उसमें सिर्फ ये मत कहिए कि हम तो बड़े भले थे, नेता बदमाश थे, हम वो सब हमसे ही आते हैं। हम भी उतने ही कमीने थे, गालिब के लफ्ज़ों में। वो लोग भी हमारी तरह ही हैं, हमारी ही दुनिया से जाते हैं। तो एक चीज़ तो ये। दूसरा, वापस आते हैं अपने मौजू पर। ये बड़ी बात है, ये फ्रेम है जिसमें हमें शाहजहानाबाद को रखना चाहिए। शाहजहानाबाद जैसे बहुत सारी किताबों में लिखा जा चुका है, कल से बात भी हो रही है, बदल गया, नए भगवान आ गए, शेरों वाली माता आ गई पार्टीशन के बाद, इससे पहले नहीं थी। कुछ सालों में छठ पूजा भी होने लगी, नया प्रोसेशन पहले नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शहर है वो रुका नहीं, उसकी मजहबियत भी बदलती गई। और क्योंकि मजहबियत बदलती गई, इसलिए उसके स्ट्रक्चर्स भी बदलते गए। जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे उनका नेचर भी बदलता गया। पिछले कुछ सालों में जो मज़हब क्योंकि बदला, और ये 91 में एक बहुत बड़ी घटना घटी, वो घटना थी लिबरलाइजेशन, जिसने कि मज़हब का मार्केट ओरिएंटेड स्वरूप हमको दिया। ये भी हम बात नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेजेंड और ये और वो, उसमें हमें ये 2 कड़ी बातें याद रखनी पड़ेंगी। एक लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, और दूसरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये बिल्कुल इन्होंने हमारा मज़हब बदला है। मज़हब मार्केट बन गया, नए बाबा पैदा हो गए, हर किसी के हाथ में 10 अंगूठियाँ आ गईं, पहले भी होती थी, और उनको बुरा माना। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे यहाँ पर ये बड़ा बुरा माना जाता था कि कोई राशि अपनी देखे और वो उसकी अंगूठी पहने। लेकिन अब मैं जब देखता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो ऐसा लगता है कि सब बदल चुका है। तो किस चीज़ को हम मज़हब कह रहे हैं? मज़हब बदलता है। ठीक है, मैं एक दिन मेट्रो में ये मेरा बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल है। मेट्रो में मैं सफ़र कर रहा था, और सफ़र करते करते सफ़र कर रहा था उर्दू में ही तो लेकिन मैं वहाँ अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी हो गया मेरा, कि मैंने देखा अचानक बैठे बैठे, मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ मेट्रो में, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑब्ज़र्व करूँ लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं मेट्रो में। तो मैंने अचानक ऊपर देखा, ये नोएडा से आने वाली मेट्रो थी, मैंने अचानक ऊपर देखा, इस तरह से युवा यंग हाथ, महिलाओं के और पुरुषों के, और उनके हाथों में मैंने राशि की नगीने वाली अंगूठियाँ देखी, और हाथ में मोबाइल देखा। फिर मैं लगा कि थोड़ा और देखूं कि मोबाइल पर क्या देख रहे हैं।
तो ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी की फ़िल्म देख रहे थे या अंग्रेज़ी चीज़ देख रहे थे। तो एक तरफ आप वापस जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप आगे जा रहे हैं, जो कि ये है। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं पर हमारा मज़हब कॉन्स्टिट्यूट होता है और इसीलिए हमारे स्ट्रक्चर बदल गए। स्ट्रक्चर कैसे बदले? जैसे मस्जिदें, अगर आप पुरानी दिल्ली की मस्जिदों को जाकर देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? अब चाइनीज़ मीनारें आ गई। मीनार एक बड़ा इंट्रिंसिक एस्पेक्ट है मस्जिद आर्किटेक्चर का, लेकिन वो मीनार जो कि इवॉल्व्ड आर्किटेक्चर से होती है, नदीम भाई ज़्यादा जानते हैं मुझसे, वो रेडी टू यूज़ मीनार है। तो मैं एक दिन ऐसे ही मैं गया तो मैंने देखा मस्जिद में नई मीनार लग गई। मुझे लगा यार रात में क्या, ये तो जिनों वाली बात हो गई कि कोई रात में आया और एक रात की मस्जिदें जैसी बनती हैं। मैंने जाकर मौज़न से पूछा कि ये कब बनी, तो बोला नहीं अब मिलती हैं। फिर मुझे थोड़ा और क्यूरियोसिटी हुई और मैंने देखा कि उसका एडवर्टीज़मेंट भी लगा हुआ है कि आपको कौन सी चाहिए। अब अगर उसके आर्किटेक्चर को हम ध्यान से देखें तो वो जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर कतई तौर पर इवॉल्व्ड आर्किटेक्चर है नहीं जो हमारे यहाँ का है, जो दिल्ली का आर्किटेक्चर है। दिल्ली में बहुत मुश्किल है, अगर आप दिल्ली वाले हैं तो ये ऊपर से अगर आप ड्रोन से दिल्ली की तस्वीर लें तो बहुत मुश्किल है आपको ये बताना कि ये गुरुद्वारे का गुंबद है, ये मस्जिद का गुंबद है या मंदिर का गुंबद है। अब बदल गया, जैसे ही मार्केट आई तो मार्केट ने उसको बदल दिया। अब जो मस्जिद की मीनार है, गुंबद गायब, क्योंकि आपको वर्टिकल, आपको हॉरिजॉन्टल सेंस के अंदर मस्जिद बनानी पड़ेगी। अब जो मीनार है वो मीनार जो है वो आप यरूशलेम वाली लगाएंगे, आप मक्का वाली लगाएंगे या कौन सी लगाएंगे, तो वो एक तरह का जिसे पैन इस्लामिज़म कहा जा सकता है आर्किटेक्चर का, वो शुरू हो गया। दिलचस्प चीज़ हुई मस्जिद के अंदर जाकर, ये तो बाहर हो गया। जब अंदर गए, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं इवॉल्व्ड शाहजहानाबादी हूँ, जब आप अंदर गए और ख़ास अब अनफॉर्चुनेटली जावेद साहब अभी है नहीं तो मैं उनको शायद कुछ और नसीहत देता कि मस्जिद को बाहर से मत देखिए, अंदर भी जाया कीजिए। अंदर भी बहुत कुछ होता है, बदलता है, ठीक है। और मज़हब का मतलब सिर्फ रिचुअल नहीं होता है, फ़िलासफ़ी भी होता है। शायद वो नहीं जानते, अब कोई बात नहीं, उम्र हो गई है, क्या कह सकते हैं। तो कल जो बातें कह रहे थे वो थोड़ी सी ठीक नहीं थी। चलिए मैंने कर दिया, आपके कहने से कर दिया। मस्जिद के अंदर कुछ चीज़ें बदली हैं, और वो क्या बदली हैं, मंदिरों में भी बदली हैं। 2 मिनट उसके अंदर भी आपके बर्बाद करूँगा। मस्जिद में जो चीज़ बदली है वो है भाषा। नॉर्थ इंडिया में अब जिसे हम उर्दू कहते हैं, उस स्क्रिप्ट के साथ वो इस्लामी ज़बान नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। वो बदल चुकी है। उर्दू अब नागरी में लिखी जाती है, और सिर्फ नागरी में नहीं लिखी जाती मस्जिद में, बल्कि वो संस्कृत निष्ठ तरीके से नागरी में लिखी जाती है। शौचालय, मेरे पास 100 फोटोग्राफ हैं इस चीज़ को साबित करने के लिए। शौचालय लिखा जाता है बैतुल खला को, शौचालय लिखा जाता है। फ़ज़ाइल अमाल की किताब हिंदी में मिलती है, कुरान का तर्जुमा हिंदी में मिलता है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ और शाहजहानाबाद की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। अब ये 2 अलग अलग ऐसे पैराडॉक्सिकल इश्यूज़ हैं। एक तरफ आपकी मस्जिद जो है वो पैन इस्लामिज़म की तरफ इशारा कर रही है, एक तरफ आपकी ज़बान जो है वो अलग तरीके से इशारा कर रही है। ये सेक्रेट ज्योग्राफी है, इससे हमारा मज़हब तय होता है जो कॉम्प्लेक्स है। इसकी मैपिंग हम करना शुरू कर, मैंने कहा नक्शा, जैसे ही नक्शा करेंगे नक्शे में फिट नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इवॉल्व है, ये इवॉल्विंग है, हमेशा नए से नए तरीके से इवॉल्व हो रही है। जैसे मुझे एक ये था कि जो हमारे आज के स्टूडेंट हैं वो पढ़ते, मुझे बड़ा फ़ख्र था, हम तो बड़े पढ़ने वाली जनरेशन से हैं, लेकिन ये गलत है। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं गलत हूँ। कैसे? क्योंकि आज के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं और ज़्यादा लिखते हैं। वो टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं और टेक्स्ट मैसेज पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उनकी सिस्टमेटिक रीडिंग राइटिंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन लिखते पढ़ते तो हैं। उनको सिर्फ सिस्टम तो बनाना है, इसलिए दे आर मोर कैपेबल देन द जनरेशन आई बिलोंग टू। सो देयरफॉर द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट इवॉल्व सिटी, evolve sacred geography, we need to think of changes out of the box of mapping them. एक चीज़, आखिरी बात जामा मस्जिद पर, मुझे कितने मिनट जामा मस्जिद पर देंगे आप? 5 मिनट ले सकता हूँ। देखिए ये इसीलिए मैं, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स का आदमी हूँ, तो मुझे ये थोड़ा आपका वक्त चाहूँगा कि जामा मस्जिद की थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको बता दूँ, और वो क्यों बहुत ज़्यादा अहम है इस मौजू पर बात करने के लिए। इसलिए अहम है कि
ये सब हम जानते हैं कि एक फैमिली है जिनको बुलाया गया था बुखारा से, और वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ाने का काम, इनको इमाम कहा जाता है, वो थे, रहे 11 जनरेशन बाहर, अभी 13 या 14वीं जनरेशन है वो हैं अभी वहाँ, और ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन इसके 11वें इमाम साहब जो थे वो थोड़े ज़्यादा क्रिएटिव थे, और अच्छा मुझे लगा आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं तो नो दैट्स ऑलराइट। जी, मैं एक सेकंड थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहूँगा। मैं ऑडियंस को प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा अपने मोबाइल स्विच ऑफ रखें या साइलेंट पे रखें, और यहाँ फ़ोन्स ना उठाएं, और आपस में भी अगर बात कम करें या बाहर ही जाकर करें तो बेहतर रहेगा। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ ये जी, एक कई बार हो रहा है। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, और ये ज़माना बदल चुका था। ज़माना इसलिए बदल चुका था कि जो अब मुसलमान तो एक तरह से होते नहीं हैं, कई तरह से मुसलमान होते हैं। तो जो क्रीम मुसलमानों की थी वो पाकिस्तान चली गई, तो यहाँ बचे तो जो दिल्ली वाले जिनको कहा जाता है, जो हवेलियाँ थी वो कटरे बन गए, और उनके साथ जो हुआ वो सब हम जानते हैं। और एक अजीब सी चीज़ हुई कि जब अर्बन डेवलपमेंट शुरू हुआ तो जितने भी ये तारीख़ी इमारतें थीं वो उस इलाक़ों में सिचुएट हो गई जो पॉश एरियाज़ डेवलप हुए। ये बड़ा पैराडॉक्सिकल है। मुसलमान जो है वो रह गए एक जगह पर, इसको हम शाहजहानाबाद कहते हैं ज़्यादातर, बाद में सीलमपुर, दूसरी जगहें ओखला, ये सब चीज़ें बाद में डेवलप हुई। लेकिन जो बिल्ट हेरिटेज था वो ऐसे इलाक़ों में था जो कि नेहरूवियन फ्रेमवर्क में पॉश एरियाज़ थे। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट करने वालों में याद रखिए, यहाँ ये इतनी मासूम जगह दिल्ली कभी नहीं रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले ही आ चुका था, तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प काम किया। दिलचस्प काम ये किया कि हर एक तारीख़ी इमारत के आगे एक प्राचीन हनुमान मंदिर बना दिया। आप चले जाइए किसी भी, मेरे पास फोटोग्राफ है, जितने भी तारीख़ी इमारतें हैं उनके आगे एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। क्यों है? क्योंकि मध्यकालीन से पहले प्राचीन आता है। और हमारे यहाँ आर्कियोलॉजी की सबसे बड़ी दिक्कत हिंदुस्तान में ये है, आर्कियोलॉजी के 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, एक एग्जीक्यूशन होता है, एक कंजर्वेशन होता है। या तो आप बचाइए या खो दिए। अंग्रेज़ों ने जिस तरह से आर्कियोलॉजी को हमको दिया, उसमें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया कि अगर आपको कुछ सच्चा निकालना है तो आपको तोड़ना वो है जिसको बचाना है। तो बचाने और तोड़ने की ये जद्दोजहद जो थी, उसने हमारी इमेजिनेशन को तय किया है, आज तक तय किया है। ज्ञानवापी उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। या तो आप ये तो अब जैसे आप, लेकिन बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम जो है वो एक रेडार टेक्निक से हम मैप कर सकते हैं। हमने किया है, मैंने भी किया है। हम कब्रों के नीचे जाके देखते हैं कि एक और कब्र है या नहीं। 2-3 कब्रिस्तानों में हम लोगों ने काम किया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। लेकिन नदीम भाई एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि ASI को जितना कम कहा जाए उतना वो अभी भी उसी 19वीं सदी के दौर में, तो जिसमें कि इमेजिनेशन ये है कि आप जो तोड़ेंगे और जिसको बचाएंगे उसमें कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, हमेशा साथ नहीं रह सकती दोनों चीज़ें। अब दूसरी चीज़ जो है, जो जामा मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाली, जब ये हो गया आज़ादी के बाद में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आ गई, तो और 67 के बाद कांग्रेस चुनाव हार गई, और कांग्रेस को चुनाव के बाद 9 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई। और कांग्रेस के लिए बड़ा ज़रूरी था कि मुस्लिम सपोर्ट को इस तरह से लाया जाए, और उसके लिए मुसलमान हमेशा मज़हब को मानता है, ये भी एक परसेप्शन हमको लगातार दिया गया। और वो गई पहला फतवा लेने के लिए। अब फतवा लेने कहाँ जाएंगे बताइए? 67 की बात कर रहा हूँ। कोई बताए कि 67 के अंदर पहला फतवा इंदिरा गांधी को किसने दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, देवबंद ने दिया था। लेकिन देवबंद तो एक सिंबॉलिक, एक उसमें सिंबॉलिक सेंस कम है। अगर आप कंपेयर करें जामा मस्जिद को और देवबंद को, तो जामा मस्जिद का एक सिंबॉलिक स्टेटस था। क्यों था? कि भाई ये सबसे बड़ी मस्जिद है, प्राइम मस्जिद है, दिल्ली की है, राजधानी है, एट्सेट्रा। गांधी जी यहाँ आते ही थे। गांधी जी नहीं आते थे, आज़ाद हिंदुस्तान में तकरीर करने के लिए जो मुस्लिम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हमेशा आके जो जिसको खुतबा कहा जाता है ईद का, वो इस मस्जिद में दिया करते थे। अब यहाँ से एक इंटेलिजेंट आदमी पैदा हुआ, उसको ये लगा कि जब बाहर के आते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और उनका नाम था इमाम अब्दुल्ला बुखारी। इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने अपने पहला जो करियर शुरू किया, पॉलिटिकल करियर, जो उनकी पहली पैदाइश हुई, वो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में, नसबंदी के सपोर्ट में एक फतवा उन्होंने जारी किया, जिसको कि बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि वो फतवा देने की उनकी कैपेसिटी थी ही नहीं, मुफ्ती तो थे नहीं।
जब ये हो गया तो उन्होंने फिर दूसरा रूट लिया, क्रिटिसाइजिंग इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की मुखालफत उन्होंने शुरू कर दी। उस वक्त तक जामा मस्जिद जो थी वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन ये आदमी बड़ा करेजियस था, मैं ये बोलूँ, और हमेशा जो बड़ा लीडर बनता है वो करेजियस होता है, जो भी आज भी बहुत करेजियस हैं। तो वो करेज उनमें था, और वो करेज इतना ज़्यादा था तो उन्होंने 3-4 चीज़ों के एक्सपेरिमेंट किए, और वो एक्सपेरिमेंट बड़े क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट हैं, याद रखिए। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो जिससे अजान दी जाती है, और वो अजान देने के वक्त में जो 1974 की बड़ी मशहूर एक वाक़या है कि इंदिरा गांधी ने लाल किले से सुबह सुबह अपना शुरू किया, जो इंडिपेंडेंस डे का जो उनकी तकरीर होती है वो, और इमाम साहब ने जामा मस्जिद का पब्लिक एड्रेस सिस्टम खोलकर ये कहना शुरू कर दिया कि झूठ बोल रही है। तो इससे बड़ा अपोजिशन को और कौन मिलेगा? जाहिर सी बात थी, जेपी जितने भी जो अपोजिशन लीडर्स थे वो उनके इर्द गिर्द होना उन्होंने शुरू कर दिया। इमरजेंसी में वो कुछ नहीं बोले, ये दिलचस्प है। बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि ये रैडिकल आदमी था और उसने ये कर दिया। ना तो वो इमरजेंसी के टाइम में कुछ बोले, और ना ही वो तुर्कमान गेट की जो घटना हुई उसके ऊपर कुछ बोले। इससे पहले वो काफ़ी बोले, और जो भी बोले वो हुआ ये कि जामा मस्जिद के क्लियरेंस होना था, वहाँ पर जो मुर्गा मछली की दुकानें थी वो हटाई गई एट्सेट्रा, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो, जैसे मैंने ये कहा कि वो गए और जाकर उन्होंने सरफराज का नाम आपने सुना होगा, सरफराज खान, जनरल सरफराज खान, वो बच्चों के, वो रेवन्यू मिनिस्टर भी थे, और बच्चों के घर में वो एक जो वक्फ बोर्ड का जलसा होता है उसमें थे। इमाम साहब वहाँ गए, और ये करेज की बात है, और उन्होंने जाके उनके थप्पड़ मार दिया। ये रिकॉर्डेड है, ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है टाइम्स ऑफ इंडिया 75 में। ही वॉज अरेस्टेड। जब वो अरेस्ट हो गए तो खिलाड़ियों की तो तादाद थी उस वक्त में, तो जो अभी के इमाम साहब हैं उनके साहबजादे, वो आए और उन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम खोलकर ये कह दिया कि इमाम साहब को गोली लग गई। एज एक्सपेक्टेड रॉइट हो गया, और रॉइट जिस वक्त में हुआ तो लोग पीछे हटते गए, और लोग पीछे हटते हुए जामा मस्जिद के अंदर चले गए। पुलिस ने जामा मस्जिद पर गोलियां चला दी, बहुत कुछ हुआ, इमाम साहब को छोड़ दिया गया। लेकिन दिलचस्प चीज़ें दो हुई। जैसे एक पब्लिक एड्रेस, मैंने बोला ना 3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ और फिर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। 2 चीज़ें बड़ी दिलचस्प हुई। एक, उन्होंने क्या किया कि जहाँ जहाँ पर गोली लगी थी उसको इन सर्किल कर दिया और उसको हाईलाइटेड कर दिया। जामा मस्जिद के गेट पर अभी भी आप जाएंगे तो वो गोलियों के निशान आपको मिल जाएंगे। और दूसरी सबसे क्रिएटिव चीज़, पॉलिटिकली क्रिएटिव, अच्छी बुरी हम उसका फैसला बाद में कर लेंगे, वो ये था कि उन्होंने एक इंट्रोडक्टरी, जैसे इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री लिखी जाती है मॉन्यूमेंट्स की, इसी तरह से जामा मस्जिद की एक इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री लिखी। और दिलचस्प चीज़ ये है कि तमाम इंट्रोडक्टरी हिस्ट्रीज में आपको सेकंड पर्सन में डिस्क्रिप्शन मिलता है, दिस मॉन्यूमेंट इज बिल्ड बाय दिस एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर जो जामा मस्जिद की इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री लिखी गई थी उसमें फर्स्ट पर्सन में था, मैं जामा मस्जिद आपसे मुखातिब हूँ और ये जालिम इंदिरा गांधी सरकार ने मेरे सीने पर गोलियां चलाई, अगर आपको शक है तो जाके वो सर्किल देख लीजिए। ये एक्सट्रीम क्रिएटिविटी है। तो जो सेक्रेट ज्योग्राफी की बात है वो तभी मीनिंगफुल होगी जब हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और ये जो खेल होते हैं राजनीति के, इनको साथ रख कर देखें। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Hilal. Before I open the session for questions, perhaps if I may, I'd like to add a few points to what Dr. Hilal have said. इन्होंने एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल जीनियालॉजी कहें, अप टिल एटलीस्ट एमरजेंसी एंड आफ्टर जामा मस्जिद की दी वाया द इमाम। मैं थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव को, नज़रिए को ज़रा सा शिफ्ट करना चाहूँगा कि जामा मस्जिद की अहमियत वहाँ के लोगों के लिए भी क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इमाम, एज अ मॉन्यूमेंट, एज अ सिंबल। कुछ तो बातें इस तरह की भी हैं। मैं हाल ही में क्या नाम है उनका, मौलवी वाहिदी की किताब पढ़ रहा था, मेरे ज़माने की दिल्ली, पाकिस्तान चले गए थे वो लिख रहे हैं कि उन्होंने कोशिश की, मुहिम चलाई उन्होंने, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस सम टाइम दिस इज़ हैपनिंग, उन्होंने इस सड़क का नाम, जिसको अब हम उर्दू बाज़ार जानते हैं, दोबारा उर्दू बाज़ार पढ़वाया। असल उर्दू बाज़ार शायद हिस्टोरियंस बेहतर बता सकेंगे, लेकिन जहाँ आजकल साइकिल मार्केट है दूसरे गेट की तरफ,
वहाँ हुआ करता था। और वहाँ आजकल भी किताबों का बाज़ार है जिसमें अक्सर किताबें अब दीनी ज़्यादा मिला करती हैं, अदबी भी मिलती हैं, फ़िक्र की किताबें भी हैं, खाने पीने का बाज़ार है, बाहर से लोग आ रहे हैं खूब खाना खाने। ये तो एक और जामा मस्जिद का एक ओरिएंटेशन है, एक वक़ार है, एक इमेज है, साइज़ है। आई थिंक 3 बाज़ार उससे आकर मिलते हैं, अलग अलग लोग वहाँ जाते हैं, उनका सेंट्रल लोकस है पुरानी दिल्ली में। मोर रिसेंटली थोड़ा पॉलिटिकल स्फीयर में भी अगर मैं कहूँ इसे, फ़िलहाल के जो इमाम बुखारी हैं उन्होंने anti-CAA प्रोटेस्ट को कुछ ख़ास सपोर्ट नहीं किया था। एक कॉल दी गई जिसको उन्होंने अपोज़ किया, लेकिन उसके बावजूद पुरानी दिल्ली के मुसलमान उन्हीं सीढ़ियों पे जमा हुए। चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी वहाँ आए थे, वहाँ से अरेस्ट हुए, और एक वहाँ से फिर लोगों ने मार्च करना शुरू किया और उनको दिल्ली गेट पे रोक दिया गया दरियागंज में, और वहाँ पे ठीक ठाक वायलेंस हुआ, बच्चों के भी कुछ को काफ़ी सीवियर इंजरीज आई, ओवरनाइट उनको वहीं के पुलिस स्टेशन में बंद रखा गया। तो एक लोगों का भी स्टेक और लोगों का भी क्लेम है मस्जिद पे इमाम साहब के अलावा, जो मेरी नज़र में हाल फ़िलहाल की पॉलिटिक्स में ज़्यादा एम्फसाइज़ हुआ है, हमें उसको भी देखना चाहिए। और ऑफ कोर्स उसका एक आजकल एक कमोडिफिकेशन भी है टूरिज़्म के थ्रू, टूरिस्ट इंडस्ट्री के थ्रू, फूड इंडस्ट्री के थ्रू। अब कैफ़ेज़ बनने लगे हैं ओवरलुकिंग द जामा मस्जिद। ओरिजिनली लाहौर में मैंने देखे थे इस तरह के कैफ़ेज़, अब जामा मस्जिद में कई कैफ़ेज़ बन गए हैं, ख़ुद शायद इमाम बुखारी के भी हैं अब कुछ टेरेस कैफ़ेज़ जिनसे आप जामा मस्जिद को देख सकते हैं, बैठ के खाना खा सकते हैं। और आसपास ऑफ कोर्स हिस्टोरियंस, हाफ हिस्टोरियंस, कई लोग वॉकिंग टूर्स करा रहे हैं, फूड टूर्स करा रहे हैं, तो उसका एक कमर्शियल कमोडिफिकेशन भी है ही, जिस पे हिलाल साहब ने बात की ही थी। एक आध बात मैं ज़रा बस और ऐड करना चाहूँगा, फिर मैं आई ओपन इट अप फॉर क्वेश्चंस। कुछ पहले कह रहे थे तो मुझे ख़्याल आया कि सिर्फ जो नए फेस्टिवल्स वगैरह का ट्रेडिशन शुरू हुआ, उनके अलावा एक आध मुग़ल फेस्टिवल्स भी ऐसे हैं, पता नहीं मैं सारे सेशंस तो अटेंड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जिनका एक सेकुलर मल्टीकल्चरल उन्वान भी है। फूलवालों की सैर मसलन शायद 1812 में शुरू हुई, महरौली तक जाती है, अब भी चलती है। और इसके अलावा अगेन बट कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स ऑल्सो, हमने जीनियालॉजी की और फिरोशा कोटला की बात की, लेकिन ये जो एक डिफरेंट इंगेजमेंट at one level via ASI and at different levels from how Muslims of Shah Jahanabad engage with different monuments and how the state has engaged with monuments. I think it may be pertinent to point out, I don't know if this has been spoken of before, of what happens in 1857, post-1857 in the retributions. How the British demolish certain religious monuments but not others. दरियागंज पूरा खाली कर दिया जाता है, लाल किले के आसपास सब खाली कर दिया जाता है। कंपनी बाग जिसे अब कहते हैं, जो असल में जहाँ नारा वगैरह के बागात थे, उनके पीछे की जो कोठियाँ हैं वो सब ख़त्म कर दी जाती हैं और वहाँ पुरानी दिल्ली स्टेशन बनाया जाता है जिसके पार सिविल लाइंस होगा। तो एक कंप्लीट पॉलिटिकल जोग्राफिक रिक्रिएशन, नई सड़क बना दी जाती है। तो ये सब एक सर्विलेंस और पॉलिटिकल ईज़ ऑफ नेविगेशन की वजह से किया जा रहा है एक लेवल पे। मस्जिदें टेक ओवर की जाती हैं, मस्जिदों में अस्तबल बना दिए जाते हैं, मस्जिदें कुछ अमीर सेठों को बेच दी जाती हैं, जो सेठ अपनी जगह से ये अच्छा करते हैं कि उसे रखे रहते हैं और आखिर में ख़ुद मुसलमानों को दे देते हैं। ऐसा भी हुआ है फतेहपुरी मस्जिद के साथ मेरे ख्याल में। लेकिन द ब्रिटिश आर डिफरेंशिएटिंग, the colonial state is differentiating. I'm not aware of any temple being demolished at that time by the British. I could be corrected, and I'm happy to be corrected by historians. I'm not a historian myself. But जैन मंदिर जो का तो हैं, भैरव मंदिर जो की तो हैं, लेकिन और मस्जिद, एक मस्जिद शायद मेट्रो की डिगिंग के दौरान मिल भी गई थी, उसके रेमनेंट्स मिल गए थे डिगिंग होते हुए। तो एक ये फ़र्क है जो कलोनियल मोमेंट से ही शुरू ही हो रहा है और ASI उसको अलग तरह शायद प्रैक्टिस कर रही है। तो इसको भी मैं ज़रा हाईलाइट करना चाहता था। तो शुक्रिया हिलाल साहब, प्रोफेसर समीर साहबा, फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। आई ओपन द सेशन फॉर क्वेश्चंस, वी हैव सम टाइम। जी प्लीज। I'm sorry, I don't really have questions, but I think in my persona, in my
I am an evolved Shahjahanabadi. I was born and brought up in Shahjahanabad. I married, in Old Delhi, and I married a Kaist from whose generations had lived in Chandni Chowk, Haus Qazi, and Nai Sadak में उनका घर था. मेरी हवेली है जी. और in fact, that's how I met my husband, Professor Vinay Kumar Srivastava. He's no more there. He was principal of Hindu College also. So, well, the story goes that, Bengali Mal, jo unka Bengali market hai, his grandson Daksh and he were coming from Patodi House after having donated some food and all, because Professor Srivastava's nani had passed away. And he had been brought up by his grandparents. So anyway, so they were walking down Kucha Dakhni Rai, where my Haveli is, when Daksh, who had been studying with me in class 5, because after that I went to Karachi and finished my education there. My father was posted there. So he told him that, there was a wager that हिंदुओं की हवेली नहीं हो सकती. तो दक्ष ने विनय जी से कहा कि विनय, मेरी यहाँ फ्रेंड रहती है, उनकी हवेली है. तो जब उन्होंने मेरा नाम बताया कुमकुम, तो वो कहते मैं मान ही नहीं सकता कि हिंदुओं की भी हवेली हो सकती है. खैर एनीवे, वो हार गए वेजर, एंड वेल ही वन मी बट लॉस्ट द बेट टू दक्ष. उसके बाद तो ये बात, और हैरानी की ये बात थी कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ाने को मिला, तो वो सब कहते थे कि मैं हिंदी नहीं बोलती, मैं तो उर्दू बोलती हूँ. और इनफैक्ट प्रोफेसर मोहम्मद अमीन साहब और नूरुल हसन साहब जब हमारे टीचर हुए, तो वो कहते थे कि मुझे लगता है मैं क्लास में सिर्फ कुमकुम को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पर्शियन सोर्सेज कोट करता हूँ तो उनको पता होता है नो दैट. तो ऐसे ही तो इस तरह से मतलब मेरी ज़बान जो थी, और कई बार एक तो कायस्तों को कहा गया आधे मुसलमान, और हम लोग मीट ईटर्स थे, दे आर नोन फॉर दैट. और हम तो हमारे जो, जब हम यहाँ इस तरफ आए पुरानी दिल्ली के बाद, हम जब नई दिल्ली की तरफ आए और चितरंजन पार्क एंड देन नाउ GK1, तो वहाँ पर जो हमारे जो लोग आते थे, फ्रेंड्स आते थे और जगह से, तो वो ये पूछा करते थे कि प्रोफेसर श्रीवास्तव, इज़ योर वाइफ अ मुस्लिम? तो ये बात मैं हर बार सुनती थी, और यहाँ तक कि क्योंकि मैंने 40 साल मिडीवल इंडिया पढ़ाया, एंड आपने कहा हाफ बेक्ड historians, I mean heritage walks conduct करते हैं, I conduct them now that I have retired. So और क्योंकि मेरा काम सूफीज़म पे है सर, और ये मैं आपसे मुखातिब हूँ. आपने ये जो जिन्नात की बात की, तो मेरे साथ ये वाकई में ये हो चुका है, तो मैं शेयर करना चाहूँगी. जी, मेरा काम अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी, क्योंकि मैंने कलंदर पे काम किया है, लाल शाहबाज कलंदर सहवान, जिनके नाम पे पूरी जिसके लिटनी जो है दमादम मस्त कलंदर. और आपने अभी रिसेंट जो उसके वर्जन्स हैं दमादम मस्त कलंदर में, हम पहले गाया करते थे हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे. अब ये नहीं गाते, अब मीका सिंह गा रहे हैं, या हनी यो हनी सिंह, उसको झन झनानन, अब झन झनानन तेरी नौबत बाजे. तो नौबत तो खैर, तो ये जो ये एवोल्यूशन जो हुआ कि मैं उतनी ही मतलब मुझे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले प्रोफेसर श्रीवास्तव और मुझे, कि हम हिंदी भी उतनी ही बेहतरीन कह सकते हैं बोलते हैं, और इंग्लिश और चाइनीज़ तो खैर छोड़िए, उन्होंने MPhil की थी चाइनीज़ स्टडीज़ में, तो
I mean, our courtship period was mostly, किसी को पता ना चले तो हम Chinese में बोलते थे. So from you know, and they did expect me, people coming out of Shahjahanabad from Old Delhi, to be speaking such beautiful English. In fact, the supervisor, Catherine Humphrey, said about the thesis that it had no grammatical or typographical error in the entire thesis. It's English. And so आजकल हम कह सकते हैं कि हमें Shashi Tharoor of English कह सकते हैं, because हम अपने if somebody asks me how I am, and yeah, so this evolution I've seen in myself also. तो पुरानी फिरोज क्या हुआ कि अबू बकर तूसी, how we started, अबू बकर तूसी हजरी कलंदरी की दरगाह थी. I think there are others waiting to ask questions. Yeah, about that. This is true. ये जो dream और उसकी आप बात कर रहे हैं, तो that by chance, I don't know how, Professor Srivastav's name was picked up income tax के लिए. So we were all very worried, and that time I used to travel by bus. You know, my chartered bus something got wrong with it right outside. I mean, on the other side of Abu Bakr Tusi's dargah. Wonderful. And I just walked across. And there, my story about Sufism and my calendar and my interest, it started there. Wonderful. So it had to happen. So it's true. There were many other stories. Firuzshah Kotla. It's wonderful to hear all of this. Thank you so much. No, I just wanted to share because this is all wonderful, and please do share it more widely over lunch. Hear me standing. I think Professor Rizavi had a question. Maybe. कि आप तीनों लोगों ने चाहे वो मास साहब का इंट्रोडक्शन रहा हो या प्रोफेसर समी ने जिस अंदाज में इवन शाहजहानाबाद के बाहर की भी बातें हमें बताई, और जो हिलाल साहब, खैर हिलाल साहब इज़ एन ओल्ड एक्सपर्ट, यही एक्सपेक्टेड था इनसे. लेकिन मैं आप तीनों के सामने एक और बात करना चाहता हूँ कि जैसे आप बात कर रहे हैं, ये पूरा पैनल है सेक्रेड ज्योग्राफी एंड लेजेंड्स ऑफ शाहजहानाबाद. मालूम नहीं क्यों एक सेक्रेड ज्योग्राफी है दिल्ली की जिसको शायद ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं. शाह मर्दा, यानी एक औरंगज़ेब वो एक रूलर है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हिंदुओं और शियों दोनों को उसने तंग किया. जितना हिंदू औरंगज़ेब को गाली देते हैं शायद उससे 1% भी कम शिया हजरात नहीं उनको कहते होंगे. फैक्ट ये है कि शाहजहाँ के दौर में एक ये मज़ार वहाँ बुनियाद रखी जाती है, एंड इट कम्स टू फ्लरिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगज़ेब उनके दौर में, और उसको ग्रांट्स वगैरह भी दी गई. बल्कि कल मैं आपके अंजुमन तरक्की उर्दू बोर्ड के जो बुक शॉप लगी थी उस पर किताब भी कल शाह मर्दा बिक रही थी. तो अब आप अगर ये पूरी सीक्रेट ज्योग्राफी देखें जो सफदरजंग के मकबरे से शुरू होके करबला से शाह मर्दा से नजफ अली खां का मकबरा, ये पूरा एक सर्कल है जो एक सीक्रेट ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी जिसको हम शायद भूल जाते हैं. दूसरी चीज़ ये कि जब हम हर रसूमात का जिक्र कर रहे हैं तो एक बहुत ही वाइब्रेंट जो एक कल्चरल एक्टिविटी जो पूरे दिल्ली के शहर में उस पीरियड में मनाए, यहाँ तक कि जब इब्ने बतूता यानी शाहजहानाबाद से बहुत पहले इब्ने बतूता जब आता है तब वो भी जहाँ हिंदुस्तान के फेस्टिवल्स में होली और दिवाली का जिक्र करता है वहाँ साथ में वो मुहर्रम का जिक्र करता है ना. और जो रसूमात हैं उस पीरियड में जो 19th सेंचुरी में अनफॉर्चुनेटली मुग़ल सोर्सेज में तो कोई ख़ास उसका जिक्र आता नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको ज़रूर रिकॉर्ड कर रखा है. आई थिंक अगर कभी इसके ऊपर आप लोग कभी लिखें या कुछ करें
So that is one sacred geography which is actually missing from our minds, and that should also be talked about. Thank you. जी आदाब। हिलाल साहब, आपने जिक्र किया अपने मेट्रो सफ़र का, तो इससे पहले कि मैं एक छोटा सवाल पूछूं, बॉम्बे का जिक्र बताता हूं मैं आपको अभी हाल का, कि बॉम्बे में आप जानते हैं कि ट्रेन्स जो है वो लाइफ लाइन है, लोकल ट्रेन्स। वहाँ पे मैंने देखा, चूँकि रोज़ मैं सफ़र करता हूँ फर्स्ट क्लास में, जो वेंडर्स आते चलने से जस्ट 2 मिनट पहले वो समोसे वगैरह, समोसा पानी वगैरह बेचते हैं। तो अभी जो हाल में देखा मैंने, जिसने चौंका दिया और हिला दिया और सोचने की बात है, वो समोसा वाला बोलता है, समोसा देता है, समोसा समोसा जय श्री राम। अब हम पॉइंट पे आते हैं, ये चलता रहेगा इस मुल्क में, नई बात नहीं है। जहाँ आपने शाहजहांबाद की बात की तो मुझे याद आता, आपने भी किताब ज़ियाउद्दीन सरदार की मक्का के ऊपर पढ़ी होगी, जिसमें उसने एक लॉस का जिक्र करता है, और वो राइटर जो है कहता है कि जो आर्किटेक्चरल जो चीज़ें थी या फिर हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस था, स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस था, उसको ख़त्म करके पूरी तरह से जो हाउस ऑफ सऊद है वो मार्केट की तरफ आ गया, बड़े बड़े टावर्स बना दिए। तो ये चूँकि वो बादशाह हैं, हमारे यहाँ कोई दूसरे बादशाह हैं, वो इग्नोर भी कर सकते हैं, इनविजिबलाइज भी कर सकते हैं, जो किया जा रहा है। मैं ये सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या चूँकि आपने शाहजहाँ पर रहे भी, वहाँ बड़े भी पले भी, आपने देखा भी गौर से, क्या वाकई वहाँ जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं या जो स्पिरिचुअल के बियॉन्ड जामा मस्जिद इज़ ऑब्वियसली मेटाफॉर ऑल्सो फॉर सो मेनी थिंग्स, उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं, क्या वो उनका भी कुछ हाल है ठीक, या फिर वो भी जो है गर्दो गुबार में बिल्कुल अटक चुके हैं? Oh, okay, shukriya. So, sorry to just interject. I'm not interjecting, I hope. I actually got the mic. I can give it to him, but it's okay. So one point that I was, actually 2 very quick points. The impact of the House of Saud is something I've personally tangibly felt in Shahjahanabad, unfortunately. My name is Zaidi, so all my life I've heard of the Ahlul Bayt, you know, alayhi salam, the family of the Holy Prophet, peace be on him. I have personally, and when I go to Shahjahanabad, it's like entering sacred territory. For me, it's the siege of Delhi, and what Shahjahanabad has given to this country is, we always talk of it, unfortunately, as kebab, biryani, and, you know, itar kharidne jate hain wahan. But it's not, for me, it's like Stalingrad. You know, and as I always give credit to Mr. Dalrymple, he has brought it out, and we should not have this bias that, oh, you know, like, you know what I'm talking about. I mean, so that's the point. The thing that I find very strange is that what Hilal sir had mentioned, we are moving away from adab to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I see this in my own family, where my khala and my cousins say adab bitiya, and my youngster cousins who are 21, 17 will say assalamu alaikum khala, and they will always respond with Allah hafiz to my khuda hafiz. So there is this very subtle, I won't even say subtle, it's Arabization, and I've actually been told कि आदाब तो इस्लामिक नहीं है, आप ये क्या, जबकि आदाब हम अलीगढ़, I'm a daughter of 2 Alligarians, हर शख्स वहाँ आदाब करता है. So we have this move away, and I have felt that sense in Shahjahanabad. Now this will shock you, I don't know if I should tell you this. I usually browse, I wander through the lanes looking for Momin and Mir, I'm obsessed with them. I once went to a bookshop in Urdu Bazaar area where I was asking for books about Imam Hussain alayhi salam. I just quietly asked. I didn't know it was such a controversial topic. I was told Yazid और Muawiyah पे किताबें मिल जाएंगी आपको. तो I was like, नहीं, मुझे उनसे कोई interest नहीं है, वो अहल बैत के कातिल हैं, आपके पास अगर इमाम alayhi salam की हैं, and I just left. I couldn't, and then he said it very mockingly because he knew my name. So I was very saddened to see the level of the House of Saud. I don't call this as the innate nature of the Shahjahanabadis. The secularism, whether it's intra-Muslim or intra-Hindu Muslim. The second point was about the great game that you talked of mapping. So my Nanihal is next to the Survey of India in Dehradun. And that is where George Everest did the massive trigonometric survey of India, which the Brits basically mapped India from top to bottom. And I just wanted to add that that is the time when the tangible existence of this Indian subcontinent mass and Alexander Burns mapping the Indus becomes this cartographic entity called, you know, Hindustan, which begins and ends around Kandahar and, you know, all of that. But the Brits, like you said, it goes right to George Everest and William Lambton,
who did this cartographic survey and wanted to map India to administer it. And that's when we got this Hindustan that we see. So I just wanted to bring those 2 points. But the first point was very hurtful to my heart, because I never expected this in Shahjahanabad, and I feel it's my duty to bring it up. Yeah, thank you. Those are observations, so I'm not sure if you The want first to one is an respond. Can we observation, and the take- second one, no, the first one is also a question. Is there an impact of the House of South in Shahjahanabad? He already, Consider- yeah, oh, fine. Should we take one more? One from, maybe just the last two questions, please, we'll have to keep them very brief. Asma Saiba and Ji. Acha. Okay. Hello. Quickly. if you want. May I would like to interject here because this is about the structure. We're talking about But spaces. I've requested her to speak. Janab, I'm so sorry. Ji, nahi, matlab, sorry. Well, we'll have to keep it slightly ordered. Bole? Thank you very much for a very wonderful discussion. And most importantly about the politicization of religious identity that Hilal was talking about. So I just wanted to give, I just wanted to explain a bit more about it. That, you mentioned about that how Khalid described Banaras as Kaaba. That how these meanings actually change when it comes into politics. So I'm just talking about my reference point is the Indian Delimitation Committee report, and the Indian Delimitation Committee report. There was a debate on separate electorate and joint electorate. As soon as so basically the colonial, there is a whole process of how colonial state actually demarcated people, and at the same time mohallas and the areas on the lines of religious identity. And it did not remain to the streets and mohallas after the 1940s, 1935, basically after the 35 Act. Sure. So in that delimitation committee, there is always appeals to define certain, constituencies on the lines of religious identity. And in that, one of the proposals was to define Banaras as a Hindu urban constituency or general urban constituency because of its historical connection to the Hindu identity and Hindu religion. And of at course. the same time to define Aligarh as a Muslim urban constituency. Sure. So this is how the meaning completely changes for people, for literature, and when it comes to politics. Not for literature here. I mean, you've given an example from politics, but yeah, let's quickly move on. Yeah, please, and then we'll come to you, and we'll end with Madam. Yeah. हिलाल साहब मैं अशोक माथुर बाशिंदा हूँ पुरानी दिल्ली का मैं भी और आई एम कंटिन्यूइंग टू स्टे देयर सो शाहजहानाबाद इज़ फुल ऑफ examples of syncretic lifestyles of Shahjahanabadis. The mere example that there is a Jain temple that exists right in front of the Red Fort. I mean, imagine all the emperors coming out of the Red Fort and the first sight that they get to see is a Jain temple. And it has flourished since, then it is flourishing till now. Of course, I think you skipped missing about the temples and spoke more about the mosque. Also, you spoke about the lectures that had been given by, or the speeches that have been given by the Imam. Of course, Imam is one big subject that has to be taken up, what he is doing to the mosque, which belongs not only to the Muslim, but to all of us. The surroundings of the Jama Masjid that he is screwing up. All that, is a good subject that has been taken up. But you forgot to, mention about Abul Kalam Azad's speech that he gave from the steps of Jama Masjid. So it's more pertinent to talk about the syncretic lifestyle, of the Shahjahanabadis, more of, the dirty politics that we are indulging in now. Also, could you be precise? Also, could you be precise? Yeah. Also, could you be precise about, you spoke that you've got pictures. Could you be precise about telling those Hanuman temples in front of the mosques? Just the last question, we'll then have... I would love to have, cite those examples. Sorry? Yeah, in view of the delay, I'm really sorry, but my background is that I'm a sociologist and I did resident research in Hakim Ajmal Khan's one branch of the family, and lived for 2 years during the emergency, working on transitions. But one thing I found missing in this dialogue today is the life-changing, or what should I say, earth-shattering changes that happened in the sacred geography, or even in
the life of the city and the ethos within which this was placed, starting from Nadir Shah. So every 100 years, then 1857, then 1947, and none of that has been, वो सब उसका वो बदल जाता है, culturally, religious, and then of course you have, and so the British coming, all the things that you mentioned, very, very important, but and then you have the emergency, and now you have yet another emergency, but instead of focusing on what is happening today in this particular session, I think that some thought should have been given to that. I'll stop here because there's a very big dialogue. Yeah, thank you very much for all the questions and comments. Please. Can we? मुझे तो भूख नहीं लग रही है अगर आप In all the conversations we've had since the morning, I was just wondering why Morigate and the adjacent, Tis Hazari was never mentioned in all of the conversations, because that also forms a part of the historicity of Shahjahanabad. Thank you. Yeah, thank you very much. Please stop. Now we cannot have any more speakers at all. No, nothing at all, please. No, nothing. हाँ नहीं सब चीज़ें नहीं हो सकती भाई ऐसा क्या देखिए अभी पता नहीं अभी तो बैग भी नहीं मिला अब आप सारी बातें पूछ लेंगे बिना बैग और फाइल के तो ऐसा थोड़ी होता है बैग दीजिए भाई अभी इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते हम प्रोफेशनल रिसर्चर हैं हम लोग तो प्रोफेशनली मैं आपको जवाब देता हूँ और प्रोफेशन होना अच्छी बात है इट्स नॉट बैड ऑनेस्ट टू डिजिटल इंडिया बेसिकली ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जो कि अगर ये हम नहीं बोलते तब भी होते हैं तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या नहीं कहा गया वो इसलिए नहीं कहा गया कि कुछ तो हमारी लिमिटेशन है जाहिर सी बात है मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ और मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ तो इसीलिए सारी बातें तो मुझसे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए तो मैं आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरा इंटरेस्ट है और उसी इंटरेस्ट की वजह से मैं दो चीज़ों को लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ एक कॉन्सेप्चुअल आंसर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वो ये है कि कॉन्सेप्चुअली जब भी हम बिल्ट हेरिटेज की बात करते हैं तो यूजुअली हम नॉस्टैल्जिया दो तीन चीज़ों पर याद रखिए नॉस्टैल्जिया किसी चीज़ की याद कल्चर और उसके एवरीडेनेस को घालमेल कर देते हैं और इस घालमेल में हम जो स्ट्रक्चर हैं क्रिटिकल स्ट्रक्चर दे मे बी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एज वेल उनको हम कहीं बात नहीं करना चाहते तो जो डर्टी पॉलिटिक्स है उसके डर्टीनेस में ही इसके नुआंसेस छुपे हुए हैं अगर हमने यहाँ पर डर्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं की तो गड़बड़ हो जाएगी मौलाना आज़ाद की स्पीच की आपने बात की मैंने एक्सटेंसिवली उस पर काम किया हुआ है लेकिन वो वक्त मुझे लगता है कि मौलाना आज़ाद की बात तो हम सभी जानते हैं जो हम नहीं जानते हमें उसकी तरफ भी बात करनी चाहिए जब तक कि हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे हमारे अब आप बोल लीजिए या मैं बोलूँगा ये तो देखिए हम पुरानी दिल्ली वालों का है बोलने नहीं देते हम और हमारी आंखें बड़ी तेज़ होती हैं हम 1 मिनट में कैरिकेचर भी बना लेते हैं बहरहाल छोड़िए हाँ नहीं बिल्कुल तो इसीलिए ये जो सवाल हैं अब ये 3 ज़रूरी सवाल हैं एक सवाल जो आपका सवाल था वो अहम सवाल था कि भाई मंदिरों पर बात क्यों नहीं हुई वो इसलिए बहुत जाहिर सी बात है कि किसी भी मंदिर से दिल्ली के बहुत बड़ी अपील जारी नहीं हुई यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के ज़माने में भी तमाम मंदिरों ने छोटी छोटी अपीलें जारी की और बहुत दिलचस्प बात ये बताऊँ कि सनातन धर्म सभा दरियागंज के मंदिर ने ये कहकर अपील कांग्रेस के संदर्भ में जारी की थी जो आज कांग्रेसी बड़े प्राउडली कहते हैं कि ताला हमने खुलवाया था ये आज की बात नहीं है ये मैं आपको बता रहा हूँ 1989 के इलेक्शन की वो पैम्फलेट मेरे पास है जहाँ तक तस्वीरों की बात है तो मेरा अपना एक आर्काइव है आपसे जब बात होगी तो आप चाहिए तो और मेरी वेबसाइट हम लोग की जो CSDS की है उस पर जाइए हम डिजिटल कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को
हाँ नहीं तो आप बिल्कुल, मैं तो एकदम एक ब्रॉड स्ट्रोक लगा रहा हूँ ड्राइंग का, आप बिल्कुल चले जाइए और कहीं पर भी जाकर देख लीजिए, प्राचीन हनुमान मंदिर मौजूद है हर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के आगे दिल्ली के। अरे सफदरजंग जाके देख लीजिए ना, यहीं बराबर में है। हाँ मैं लाल किले के बाहर है, लाल किले के अंदर है, लाल किले के गेट पे नया नया बना हुआ है। शाहजहानाबाद में ढेरों प्राचीन मंदिर बन चुके हैं। वो मंदिर हमारे सामने ही बना है। हाँ चार मीनार के पास भी है। मैं बस बस 2 सवालों के जवाब देकर मैं भाई बिल्कुल एकदम पक्का। जो लॉस वाली बात है नहीं, जो नदीम भाई आपका सवाल था, मैं उसके ऊपर 2 बातें कहना चाहता हूँ। कमेंट है नहीं, लेकिन वो कमेंट इतना सीरियस कमेंट है कि उसको हमें सीरियसली इसलिए लेना चाहिए कि जब भी मुस्लिम इमेजिनेशन की बात होती है तो उसमें शिया इमेजिनेशन जो होनी चाहिए थी, आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन और पॉलिटिक्स, वो नज़रअंदाज है। हमारा इतना बड़ा डिवाइडिंग लाइन है हिंदू मुसलमान का कि उसमें मुस्लिम डाइवर्सिटी का सवाल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इसलिए आपका जो कमेंट है वो बहुत सिग्निफिकेंट कमेंट है। एक आखिरी बात ये, लेकिन इसके बावजूद भी जब मुस्लिम कल्चर को दिल्ली में बचाने की बात हुई तब मुहर्रम जो था वो सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट था, पर्टिकुलरली बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मुहर्रम को हमको करना है, इसीलिए हुआ ये कि वो जो रसीद होती थी, जो सर्टिफिकेट होता था कि आप हथियार ले जा सकते हैं इसके अंदर अखाड़े में, वो बहुत सारे अखाड़े बरकरार रहे उसके बाद में। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, लॉस वाली बात जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए आइडेंटिटीज़ कभी रुकती नहीं है, आइडेंटिटीज़ इवॉल्व होती हैं, बदलती जाती हैं। ये मानना कि एक आइडेंटिटी जैसी थी वो हमेशा वैसी रहेगी, बिल्कुल गलत होगा। लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहिए। जो आप कह रही हैं अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़, ये एक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन ये एक्सप्रेशन एट द सेम टाइम बहुत सारे और फैक्टर से भी गाइडेड है। जो मेरा वो मेट्रो वाला एग्जाम्पल था उसके साथ में, नहीं आप 1 मिनट अभी बोलने दीजिए, बस बाहर बात कीजिए, ठीक है। और जो ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर जाइए। आइडेंटिटीज़ की जब भी बात कीजिए तो आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर जाइए। थैंक यू। वो मेरे सर पे खड़े हैं भाई। Thank you everyone. I can see there's a lot of interest. Please have the conversations over lunch now and we'll conclude here. Thank you to the panelists. Thank you to everyone who's attended this panel. जुमा भी शायद कुछ लोगों ने छोड़ा है, तो उसके लिए भी मतलब अल्लाह आपको इसका अजर देगा, लेकिन हमारी तरफ से शुक्रिया जी। शुक्रिया प्रोफेसर समीर रफ़ीक, Professor Hilal Ahmed and Dr. Hilal Ahmed and Dr. Maaz bin Bilal. It was a really nice session, and obviously people are very keen to ask a lot of questions, and it demands a lot of other discussions as well. Probably जिनके नहीं questions answer हो पाए वो बाहर जाकर अपने questions के answers ले लें. And there's a paid cafeteria service outside, so if anybody would like to, go ahead and